Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the students. We are here once again for the online lecture series. And today it's going to be a recorded lecture that you are going to view. And in between the recorded lectures, we'll be having a live interactive session as well for your questions and the answers to them. We'll be discussing the project scheduling, which we had been discussing since the previous lecture. Today, we are going to move forward and discuss about how the projects are graphically represented by project networks. तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी की थी प्रोजेक्ट नेटवर्क्स के मुतालिक। आपने देखा था कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ में और एक्टिविटीज़ जो हैं वो फर्दर टास्क्स में डिवाइडेड होती हैं। तो आज हम ये देखना हमने है कि प्रोजेक्ट को नेटवर्क की शक्ल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो लास्ट टाइम हम टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट नेटवर्क असल में किसी भी प्रोजेक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अ network of nodes and arcs. So let's get on with the discussion. I'll load the presentation screen in front of you. This will just take a few seconds. Now, in the previous lecture, we had discussed about the terminology. We discussed what are the tasks, what are activities, what are their outputs and outcomes. We also talked about a little bit about the deliverables, sub-deliverables, and we came to the understanding of what are the networks. So let's move on in the slides. We have already discussed the basic terminology, tasks and activities, outcomes, outputs, and deliverables. And we also saw some examples of how to relate the activities in the projects. And we started the discussion on networks, as we've seen that the network is a set of nodes which are linked by arcs. And based on the networks, we can form two types of networks. One of them is known as AOA, activity on arc. The other one is known as activity on node, that is AON. We'll start the discussion of AOA, that is activity on arc, and it's a very simple thing. In such a network, activity on arc, the activities are represented by arcs. You see, when you draw the network, you draw nodes and you connect the nodes with the help of arcs. Arc is just like an arrow, and the arrow head shows the direction towards which node the flow of the activity is going on. अब जिस तरह आपके सामने एक एक्टिविटी एक आर्क की शक्ल में ड्रॉ की गई है। आर्क क्या है? सिंपल से एक एरो है जिसे आप एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नॉर्मली लेफ्ट से राइट ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं, आप इसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए फिलहाल हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करके इसको समझेंगे। हर एक्टिविटी एक आर्क या एक एरो से रिप्रेजेंट होगी।
और डायरेक्शन जो है एरो की, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटी, which means that it will tell you in which direction the project activities are moving. हर एक्टिविटी का एक लेबल या एक डिस्क्रिप्शन होगा, which is most likely an alphabet A, B, C, D like that. हर एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन भी हो, which might be in days, months, years, weeks. तो आर्क के ऊपर की साइड पे आप एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन या लेबल लिख देते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ए, और उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन आप आर्क के निचले हिस्से में लिख देते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 7. सो इट मीन्स कि दिस इज एक्टिविटी ए एंड इट्स ड्यूरेशन इज 7 days. सपोज डेज में अगर ड्यूरेशन बतानी है तो 7 का मतलब है डेज, 7 days. अब इसी को अगर हम नेटवर्क के अंदर रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर आर्क के शुरू में और उसके एंड पे एक नोड ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिस तरह आपको इस डायग्राम में 1 और 2 की शक्ल में 2 नोड्स नजर आ रही हैं. ये दोनों नोड्स अपने आप में इन देयर ओन दे रिप्रेजेंट एन इवेंट. इवेंट का मतलब है एक ऐसा टाइम जो शुरू हुआ, या इवेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो खत्म हुई. लेकिन क्लॉक के ऊपर या कैलेंडर के ऊपर वो किस वक्त शुरू हुई या किस वक्त एंड हुई, वो हम प्रोजेक्ट नेटवर्क में इन नोड्स को बना के इवेंट की शक्ल में जाहिर करते हैं. तो 1 और 2 ये दोनों इवेंट्स हैं जो एक्टिविटी ए के स्टार्ट और एंड इवेंट्स हैं. 1 इज द स्टार्ट इवेंट and 2 is the end event. हर एक्टिविटी एक स्टार्ट इवेंट से शुरू होगी और एक एंड इवेंट पे. अब एक्टिविटी की अपनी ड्यूरेशन तो है, जिस तरह ये एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन है 7, लेकिन जो इवेंट्स हैं उनकी ड्यूरेशन बिल्कुल 0 होगी. हम अज्यूम करेंगे कि इनमें कोई भी वक्त नहीं लगता, यानी किसी एक्टिविटी को शुरू करने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा, इवेंट 1, और एक्टिविटी ए को खत्म करने के लिए भी कोई वक्त नहीं लगेगा, वो होगा इवेंट 2. तो आपको ये याद रखना है कि एक्टिविटी की ड्यूरेशन तो होगी लेकिन इवेंट की कोई ड्यूरेशन नहीं होगी. हर एक्टिविटी के साथ 2 इवेंट्स एसोसिएटेड हैं. एक्टिविटी ए के लिए इवेंट 1 है स्टार्ट इवेंट, और एक्टिविटी ए का एंड इवेंट है 2. तो अभी तक आपको क्या पता चला एक्टिविटी को कैसे ड्रॉ करना है? एक एरो के साथ, एरो के ऊपर आप एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन या उसका लेबल लिख देंगे, और आर्क या एक्टिविटी के नीचे आप उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिख देंगे. अब दूसरी बात आपको पता चली कि हर एक्टिविटी के स्टार्ट पे एक इवेंट है और एक्टिविटी के एंड पे एक इवेंट है. जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट इवेंट है 1 और एंड इवेंट है 2. और आपको मजीद ये पता चला कि एक्टिविटी की ड्यूरेशन होती है नॉन जीरो ड्यूरेशन, लेकिन इवेंट की ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं होती. आप यूँ कह लें कि उसकी ड्यूरेशन 0 होती है. अब एक टर्मिनोलॉजी में से एक टर्म है माइलस्टोन. ये हम प्रोजेक्ट नेटवर्क्स बनाते वक्त भी और प्रोजेक्ट की डिस्कशन के दौरान भी इसका हम कई दफ़ा जिक्र करेंगे. माइलस्टोन एक इवेंट है. इट इज़ एन इवेंट विच रिप्रेजेंट्स सम स्पेशल ओकेजन ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट. ये कोई ऐसा इवेंट जिस वक्त कोई ख़ास वाक़या पेश आया प्रोजेक्ट में, और ये वाक़या कुछ भी हो सकता है. लाइक इट कैन बी अ बिग डिलीवरेबल, कोई उस इवेंट के वक्त बाहर आया है प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के नतीजे में, या प्रोजेक्ट के दौरान कोई बिग डिसीजन पॉइंट आ गया है. ये भी हो सकता है कि कोई मेजर किस्म की कोई चीज़ क्रिएट हुई है, लाइक डेटाबेस क्रिएट हुई या कंप्लीट हुई.
अब इस किस्म की कई एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं इवेंट्स की। वो खास किस्म का इवेंट जिसमें प्रोजेक्ट का कोई खास काम अचीव हुआ उसे हम कह देंगे माइलस्टोन। अब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम सीखेंगे। एक ही प्रोजेक्ट में एक ही एक्टिविटी नहीं होगी, कई सारी एक्टिविटीज होंगी। उन एक्टिविटीज का आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा। लाइक इस डायग्राम में एक्टिविटी ए है और उसके बाद है एक्टिविटी बी। तो इसका मतलब है कि इन एक्टिविटीज का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी से पहले आ रही है। दैट मीन्स कि जब तक एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं होगी तब तक एक्टिविटी बी शुरू नहीं हो सकेगी। अब इस रिलेशनशिप में हम एक्टिविटी बी को डिपेंडेंट एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है ए पे। तो इसका मतलब होगा कि बी अगर ए पे डिपेंड करती है तो ए बी के लिए क्या है, ए एक्टिविटी बी के लिए प्रीडिसेसर है। दो टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, डिपेंडेंट एक्टिविटीज और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज। अब इस एग्जांपल में एक्टिविटी बी डिपेंडेंट है और एक्टिविटी ए उसका प्रीडिसेसर है। इट्स सिंपल टू रिमेंबर, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड ए इज दी प्रीडिसेसर। अब चूंकि ये प्रीडिसेसर बी से बिल्कुल पहले है तो इसको समटाइम्स हम इमीडिएट प्रीडिसेसर भी कह देते हैं। ये अब आपको याद रखना है, डिपेंडेंट एक्टिविटी और प्रीडिसेसर एक्टिविटी। बी इस डायग्राम में डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, ए पे। इसका मतलब है ए जो है इसका प्रीडिसेसर है। अब प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट में आएंगी वो कौन कौन सी। तो इस मकसद के लिए हमें एक चार्ट या एक टेबल जरूरत पड़ेगी। जिस तरह की ये एक टेबल आपके सामने है, इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ एक्टिविटीज या फिर हम कह सकते हैं चार्ट ऑफ एक्टिविटीज। तो इसमें एक्टिविटीज की डिस्क्रिप्शन कॉलम वाइज, सबसे पहले कॉलम में आप एक्टिविटीज के नाम या उनके लेबल्स देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। दूसरा जो कॉलम है इमीडिएट नेक्स्ट कॉलम, उसमें एक्टिविटी की ड्यूरेशन है। और तीसरा और आखिरी कॉलम जो आपको नजर आ रहा है वो है इमीडिएट प्रीडिसेसर्स का, यानी हर एक्टिविटी का कोई ना कोई प्रीडिसेसर होगा। सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी जिसका प्रीडिसेसर नहीं होगा और वो होगी फर्स्ट एक्टिविटी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी ए जिसकी ड्यूरेशन 5 है, इट माइट बी 5 डेज, 5 मंथ्स, 5 वीक्स, कुछ भी हो सकती है। इमीडिएट प्रीडिसेसर के कॉलम में लिखा हुआ है नन। दैट मीन्स कि इस एक्टिविटी का प्रीडिसेसर कोई नहीं है। तो ऑब्वियस बात हो गई, एक्टिविटी ए विल बी द फर्स्ट एक्टिविटी। इसी तरह से एक्टिविटी बी है तो उसकी ड्यूरेशन आपको नजर आ रही है 3, और उसका प्रीडिसेसर वो आपको नजर आ गया ए। यानी इसका मतलब है कि एक्टिविटी बी एक्टिविटी ए के बाद ड्रॉ होगी। और तीसरा आपको रो में नजर आ रहा है एक्टिविटी सी जिसकी ड्यूरेशन है 8 और उसका प्रीडिसेसर ए। बी जो थी उसका भी प्रीडिसेसर ए था और सी का भी प्रीडिसेसर ए। इट मीन्स कि ये दोनों ये एक्टिविटीज ए बी और सी, एक्टिविटीज बी और सी, ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल हैं क्योंकि इनका प्रीडिसेसर एक ही है। एक्टिविटी डी है जिसका प्रीडिसेसर बी है और इसकी ड्यूरेशन है 3।
और एक्टिविटी ई जिसकी ड्यूरेशन 3 और प्रीडिसेसर है सी, और आखिरी एक्टिविटी है एफ जिसकी ड्यूरेशन है 5। और आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली कि इसके प्रीडिसेसर्स में 2 एक्टिविटीज लिखी हैं, डी और ई, which means that activity F has 2 predecessors, and it further means that activity F can only start when D and E have finished. Activity D और E जब कंप्लीट हो चुके होंगे तब ही एक्टिविटी F की बारी आ सकती है। ये है चार्ट ऑफ एक्टिविटीज या एक्टिविटीज का टेबल। तो कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करने से पहले आपके पास एक चार्ट ऑफ एक्टिविटीज होना चाहिए, जिसके अंदर से आप एक्टिविटीज के नाम, उनकी ड्यूरेशंस और उनके प्रीडिसेसर्स के नाम देख सकेंगे, और फिर इन्हीं की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट नेटवर्क की इन एक्टिविटीज को ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब एक्टिविटीज को ड्रॉ करने से पहले कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना, कुछ रूल्स हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। Each activity is to be represented by one and only one directed arc, जिसको आप एरो भी कहते हैं इन द नेटवर्क। हर एक्टिविटी सिर्फ एक ही मर्तबा रिप्रेजेंट होगी प्रोजेक्ट नेटवर्क में। आप एक एक्टिविटी को बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन जिस आर्क से होगी उसकी लेंथ या ओरिएंटेशन या उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन और उसकी रिप्रेजेंटेटिव आर्क की लेंथ का आपस में कोई लिंक नहीं है, और ना ही इस पे मैटर करता है कि जी आप उस आर्क को कैसे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, वर्टिकली या डायगोनली, किसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आपने हर एक्टिविटी की प्रेसिडेंस का मतलब है कि इस एक्टिविटी को किन एक्टिविटीज के बाद में बनना है और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इसके बाद ड्रॉ होंगी। विच एक्टिविटीज मस्ट इमीडिएटली प्रीसीड इट, यानी किसी एक्टिविटी को ड्रॉ करने से पहले उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। बी, व्हाट एक्टिविटीज मस्ट फॉलो इट, यानी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इसके बाद आएंगी। और ये भी ध्यान में रखना है कि कोई और एक या एक से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है जो आप जिस एक्टिविटी को ड्रॉ कर रहे हैं वो उसके पैरेलल या कॉन्करेंट हो। ये 3 चीजें जिनका हमने ख्याल रखना है प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हुए। अब थ्योरी से इतनी बात समझ नहीं आएगी जितना हम एक प्रैक्टिकल काम करके देखते हैं। ये जो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज हमारे सामने बना हुआ है, इसी को यूज करके हम प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। तो इसमें 6 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ, उनकी ड्यूरेशंस हैं और उनके प्रीडिसेसर्स। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक पेज की, एक ब्लैंक पेज जो आप अपने नोटबुक पे या किसी भी जगह से कोई एक पेज आपको अवेलेबल हो। आपको जरूरत पड़ेगी एक लेड पेंसिल की, ताकि अगर बीच में ड्रॉ करते हुए कोई मिस्टेक हो तो आप उसे इरेज कर सकें और करेक्ट लाइन पे ड्रॉ कर सकें। तो जो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज हमें नजर आया था उसको अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे एज अ नेटवर्क। पहली एक्टिविटी है ए, जिसकी ड्यूरेशन है 5 और इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल बात है। प्रोजेक्ट की जो सबसे पहली एक्टिविटी होगी उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पेज पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ड्रॉ करते हुए बिल्कुल शुरू एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाएं और वहां पे आप अपने पेंसिल से एक एक्टिविटी ड्रॉ कर दें, यानी एक आर्क ड्रॉ कर दें और उसका नाम आप ऊपर लिख दें ए। और चूंकि ये आपके प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटी है तो इसका जो स्टार्ट इवेंट मैं ड्रॉ करूंगा 1, उसका नंबर 1 इसी चीज को सिग्निफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट का सबसे पहला इवेंट, ना सिर्फ ये कि एक्टिविटी ए का पहला इवेंट है स्टार्ट इवेंट, बल्कि प्रोजेक्ट का भी पहला या स्टार्ट इवेंट है।
दूसरी एक्टिविटी है बी, और बी की ड्यूरेशन है 3, उसका प्रीडिसेसर है ए। इट मींस कि बी एक्टिविटी उस जगह से शुरू होगी जहां एक्टिविटी ए खत्म होती। तो अब आपको दो काम एक साथ करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि ए का एंड इवेंट बनाना है 2, और यही एंड इवेंट 2 एक्टिविटी बी का स्टार्ट इवेंट भी बन जाएगा। दोबारा से देखें, एक्टिविटी बी डिपेंड करती है एक्टिविटी ए पे। तो जहां एक्टिविटी ए खत्म हो रही है वहां पे एक इवेंट चाहिए 2, और उसी इवेंट से एक एक्टिविटी शुरू होनी है बी। तो आप उसका भी एक आर्क ड्रॉ कर दें लाइक दिस, उसको लेबल कर दें एज बी। तो अब चार्ट के मुताबिक एक्टिविटी बी डिपेंडेंट है ए पे, और ए प्रीडिसेसर है बी का। इसके बाद है एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन 8 है और उसका प्रीडिसेसर है ए। अब बहुत गौर से आपने देखना है, सी को, एक्टिविटी सी को आर्क की शक्ल में आप वहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे जहां एक्टिविटी ए खत्म हुई है, विच इज इवेंट 2। तो अब हमें क्या करना है, आर्क सी, यानी जो एक्टिविटी सी को रिप्रेजेंट करने वाली आर्क है, वो हमें 2 से ड्रॉ करनी शुरू करनी है लाइक दिस। आप एक्टिविटी सी को बी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, डजंट मैटर। लेकिन अब हमें पता चल गया कि एक्टिविटी बी और सी दोनों का प्रीडिसेसर ये है। इस मींस ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल हैं या कंकरेंट। अब फोर्थ एक्टिविटी है डी, तो डी का प्रीडिसेसर है बी। तो अब क्या करना चाहिए, वो जगह जहां पे एक्टिविटी बी खत्म हुई है वहां से एक इवेंट ड्रॉ करें, और उसी से आप आगे इमर्ज कर दें डी को लाइक दिस। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ई, और ई डिपेंड करती है सी पे। तो इसको कहां ड्रॉ करना है, जहां पे एक्टिविटी सी खत्म हुई है वहीं से आगे आप एक इवेंट बनाएं, वो होगा इवेंट 4, और फिर आप आगे ड्रॉ कर दें एक्टिविटी ई को लाइक दिस। अब प्रोजेक्ट की आखिरी एक्टिविटी है एफ। एफ के दो प्रीडिसेसर्स हैं, डी और ई। तो इसका मतलब हुआ कि डी और ई जहां पे खत्म होंगे वहीं से आगे एक्टिविटी एफ शुरू होगी। यानी एक्टिविटी डी और ई को एक कॉमन इवेंट पे खत्म करना है, और वहीं से आगे आपने ड्रॉ करना है एफ को लाइक दिस। अब साथ ही साथ आप हर एक्टिविटी, हर आर्क के नीचे उसकी ड्यूरेशन भी लिखते रहें। जैसे ही एक्टिविटी एफ ड्रॉ हो चुकी होगी तो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुका होगा। दैट मीन्स कि आपने प्रोजेक्ट की तमाम एक्टिविटीज को नेटवर्क की शक्ल में ड्रॉ कर लिया है। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी है कि जहां एक्टिविटी एफ खत्म हो रही है वहां पे आप एक इवेंट ड्रॉ करें, एंड यू कैन से दैट दिस इज इवेंट, द एंड इवेंट ऑफ एक्टिविटी एफ। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें ये है
कि इसका नंबर होना चाहिए 6, तो अभी तक वो 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसे खुद से करेक्ट कर लें, इट इज इवेंट नंबर 6। ये आपके सामने है एक प्रोजेक्ट नेटवर्क टेबल है हमारे पास, चार्ट ऑफ एक्टिविटीज का। उसकी मदद से हमने प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ किया। तो आप आई एम होपफुल कि जी आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात आगे लेके चलते हैं। एक एक्टिविटी ऐसी ड्रॉ की जा सकती है जिसकी ड्यूरेशन 0 हो। वैसे तो हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन नॉन ज़ीरो होगी, लेकिन समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसी एक्टिविटी की जिसकी ड्यूरेशन 0 रखनी पड़ेगी। हम उसे कहेंगे डमी एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उसे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ड्रॉ किया जाएगा। अब उस प्रॉब्लम को पहले आपने समझना है। प्रॉब्लम ये है कि कोई एक नेटवर्क में कोई दो एक्टिविटीज हैं, ए और बी, और इन दोनों एक्टिविटीज का कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि ये दोनों एक ही कॉमन इवेंट से शुरू हो रही हैं, 1 से, और एक ही कॉमन इवेंट 2 पे एंड हो रहा है। दोबारा से देखें सिनेरियो ये कि एक्टिविटी ए और बी दो एक्टिविटीज हैं, और कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों एक ही इवेंट पे शुरू हो रही हैं, 1 पे, और एट द सेम टाइम दे एंड एट द सेम कॉमन इवेंट 2। अब सिचुएशन का जो बॉटम लाइन आपने ज़हन में रखना है कि दो एक्टिविटीज अगर एक ही इवेंट से शुरू हो रही हूं, कॉमन इवेंट से, और एक ही कॉमन इवेंट पे खत्म हो रही, तो ये सिचुएशन बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। कोई सी भी दो एक्टिविटीज एक साथ तो शुरू हो सकती हैं एक इवेंट से, लेकिन एट द सेम टाइम एक ही कॉमन इवेंट पे खत्म नहीं हो सकती। इसी वजह से आपको इस पे क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? अगर ये ऐसा नहीं ड्रॉ हो सकता तो क्या करना चाहिए? ये वो जगह है जहां पे कि हमें एक डमी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, और वो डमी एक्टिविटी कैसे ड्रॉ की जाएगी? उसके 4 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम एक्टिविटी ए और बी दोनों को एक साथ एग्जिस्ट कॉन्करेंटली एग्जिस्ट करवाना चाहें तो हमें एक डमी एक्टिविटी डी, लेट्स कॉल इट, डमी एक्टिविटी को ड्रॉ करने के लिए आप सॉलिड लाइंस यूज नहीं करते, बल्कि डॉटेड लाइंस का आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पहली फिगर आपको नीचे हिस्से में नजर आ रही है, ओवर हियर, इसमें एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी वही हैं जो कि ऊपर ड्रॉ की गई थी, लेकिन अब आपको ये करना है कि एक्टिविटी बी को एक डमी इवेंट पे खत्म करना है। तो ये जो 2 है, इट इज अ डमी इवेंट। अब इसी डमी इवेंट से आप एक डमी एक्टिविटी एक्सटेंड करें टुवर्ड्स एन इवेंट, अ न्यू इवेंट विच इज इवेंट नंबर 3। तो वो दो एक्टिविटीज जो एक साथ एक नोड से शुरू हुई थी,
वो एक साथ एक ही नोड पे एंड नहीं हो सकती, उनके लिए आपको एक एडिशनल नोड बनानी है, डमी नोड या डमी इवेंट कह लें टू, और एक डमी एक्टिविटी आपने ड्रॉ करनी है जो रिप्रेजेंट होगी डॉटेड लाइन के साथ। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकती है जो कि आपको पहली डायग्राम में नजर आ रही है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप बजाय इसके के 2 से 3 की तरफ डमी एक्टिविटी एक्सटेंड करें, आप 3 से 2 की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस वन यू कैन सी। एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप डमी एक्टिविटी को ए के पैरेलल ही शुरू कर दें, लाइक दिस, 1 से 2 की तरफ। और फिर ए को तो एज इट इज वो एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन बी को आप डमी इवेंट से शुरू करके, जिसका नंबर आप रख देते हैं 2, और इवेंट नंबर 3 तक एक्सटेंड कर दें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ए और बी की जगह आपस में रिप्लेस कर दें। सो होपफुली यू हैव गैदर्ड कि डमी एक्टिविटी क्या होती है। डमी एक्टिविटी सिंपली ऐसी एक्टिविटी है जिसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। इसे आप यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन को या ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि जब दो एक्टिविटीज एक ही इवेंट से स्टार्ट होती हुई नजर आए, जिस तरह की ये है इवेंट नंबर 1, एंड दे एंड अप एट द सेम कॉमन इवेंट 2। तो हम नेटवर्क में इस किस्म की सिचुएशन को ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज इट विल बी रॉन्ग। उसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये 1 2 3 4 मुख्तलिफ किस्म की सॉल्यूशंस हैं। यू विल बी यूजिंग डमी एक्टिविटी टू रिजॉल्व दिस पैरेलल activities starting from the same event and ending at the same end event. अब ये एक और नेटवर्क है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस चार्ट ऑफ एक्टिविटीज में यू कैन सी देयर आर 5 एक्टिविटीज A B C D E, और इनमें हर एक्टिविटी का प्रीडिसेसर मौजूद है सिवाय A के, बिकॉज A इज द फर्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी A का इट्स ड्यूरेशन इज 3 और इसका प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है। एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर ए है और इसी तरह से सी का भी प्रीडिसेसर ए है, और एक्टिविटी डी के 2 प्रीडिसेसर्स हैं, बी और सी, और एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर है डी। अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहली एक्टिविटी है ए, इसको ड्रॉ करें। तो एक स्टार्ट इवेंट है 1, वहां से आप इसको ड्रॉ करना शुरू करें। होपफुली यहां तक आपको बात क्लियर हुई। दोबारा से देखें, इवेंट नंबर 1 ड्रॉ किया और उसके आगे हमने ड्रॉ कर दिया एक्टिविटी ए को। दूसरी एक्टिविटी है बी, जिसका प्रीडिसेसर है ए, तो इसको कहां से ड्रॉ करना है? वहां से जहां पे एक्टिविटी ए खत्म हुई वहीं पे एक इवेंट होगा इवेंट 2, और आगे आप ड्रॉ कर देंगे एक्टिविटी बी। तीसरी एक्टिविटी है सी, तो सी का प्रीडिसेसर है ए, जस्ट लाइक बी। तो जहां पे एक्टिविटी ए खत्म हुई यानी इवेंट 2, वहीं से आप एक्टिविटी सी को शुरू कर दें।
अब एक एक्टिविटी आ गई है डी, जिसके दो प्रीडिसेसर्स हैं। कौन कौन से? एक है बी और दूसरा है सी। अब ये वही सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि आपको एक्टिविटी बी और सी किसी एक इवेंट पे खत्म करने हैं, कॉमन इवेंट पे, और उस कॉमन इवेंट के आगे आपने एक नई एक्टिविटी ड्रॉ करनी है डी। तो इट माइट बी कि हमें कुछ इस तरह का ड्रॉ करना पड़ता, लेकिन थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि दो पैरेलल एक्टिविटीज एक कॉमन इवेंट पे शुरू हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन इवेंट पे खत्म नहीं हो सकती। या ये हो सकता है कि दो एक्टिविटीज दो मुख्तलिफ इवेंट से शुरू हों और एक इवेंट पे खत्म हो, तब तो ठीक है। लेकिन ये वाली सिचुएशन जरा मुख्तलिफ है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। दैट मीन्स कि हम इस सूरत में डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी बी और सी को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा कि बीच में एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो। तो आपको नीचे ऑल्टरनेट डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूं। एक्टिविटी ए, बी और सी इस तरह से ड्रॉ करें। अब हमने ये शो करना है कि एक्टिविटी डी के प्रीडिसेसर्स बी और सी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक डमी एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी। तो वो डमी एक्टिविटी मैं यूज कर लेता हूं सी के एंड इवेंट 3 पे। यू कैन सी डॉटेड लाइन में ये एक्टिविटी बन गई है, विच इज ए डमी एक्टिविटी। इसको आप एंड कर दें एक्टिविटी 4 पे, तो इस तरह से 4 एक ऐसा इवेंट बन जाएगा जिसपे बी तो खत्म हो रहा है, लेकिन सी भी एक ऑल्टरनेट पाथ से आके खत्म हो रहा है। तो अब हमें वो जगह मिल गई है जहां से कि एक्टिविटी डी को शुरू करना है। एक्टिविटी डी अब स्टार्ट होगी इवेंट नंबर 4 से। होपफुली ये आपको बात क्लियर हुई। आखिरी एक्टिविटी है एक्टिविटी ई। तो एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर डी है। अब यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें कोई डमी एक्टिविटीज बनाई जाए। तो आप जहाँ पे एक्टिविटी डी खत्म हो रही है वहीं पे एक इवेंट बनाएं और उसके आगे आप एक्टिविटी ई बना दें। और चूंकि ये प्रोजेक्ट की आखिरी एक्टिविटी होगी तो आप इस ई के एंड पे भी एक इवेंट बना दें। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने डिपिक्ट किया है उस सिचुएशन को जिसमें दो एक्टिविटीज किसी एक इवेंट पे शुरू होती हैं, कॉमन इवेंट पे, जिस तरह के बी और सी इवेंट 2 पे शुरू हो रही थी, और डायग्राम जो है वो चार्ट के मुताबिक कुछ ऐसी सूरत हाल में चली गई कि बी और सी को एक ही कॉमन इवेंट 3 पे ख़त्म करना पड़ गया था, जो कि उसूल के खिलाफ है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बी और सी को अलहदा डेस्टिनेशंस पे आप या इवेंट्स पे ख़त्म करें 3 और 4 पे, और फिर बीच में कोई एक डमी इंट्रोड्यूस कर दें। लाइक मैंने डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की 3 और 4 की तरफ। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई है। अब हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, उसमें हम जरा एक थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। ये स्लाइड्स के अंदर ऑलरेडी एग्जांपल मौजूद भी है, सॉल्व भी है। तो चार्ट ऑफ एक्टिविटी से हम एक एक करके एक्टिविटीज के लेबल्स पढ़ते जाएंगे और उन्हें पेज पे ड्रॉ करते जाएंगे। सो फार हमने इस वीडियो क्लिप में
कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की है, नेटवर्क्स को ड्रॉ करने के तरीके की बात की है, कुछ रूल्स हमने देखे हैं कि जी एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। और एक चीज़ हमने देखी है डमी एक्टिविटी, इसकी ड्यूरेशन जीरो नहीं, जिसकी ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं होती, यानी आप कह सकते हैं कि ज़ीरो होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप कोई नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो उसमें पहले से डमी एक्टिविटी प्रोवाइडेड नहीं होती, ये हमें खुद सिचुएशन के मुताबिक आइडेंटिफाई करना होती है कि क्या इस नेटवर्क में कोई डमी एक्टिविटी यूज़ होगी कि नहीं। जिस तरह इस एग्जांपल में आपने देखा था कि डमी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो डमी एक्टिविटी टेबल में गिवन नहीं थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट का कभी हिस्सा है ही नहीं। वो तो जस्ट नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए और इस किस्म के कोलिजन से बचने के लिए ये डमी एक्टिविटी हमें खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ती है। तो जहाँ डमी एक्टिविटी आएगी वहां पे एक डमी इवेंट भी इंट्रोड्यूस होगा, ताकि आपने इस सिचुएशन में देखा है। सो होपफुली आज की जो इस वीडियो क्लिप की डिस्कशन है उसमें आपने काफ़ी तवज्जो के साथ आपने इसको देखा होगा। अब थोड़ी देर के बाद आपके लिए अपलोड हो जाएगी ये वीडियो क्लिप भी, और एक दूसरी वीडियो क्लिप भी आपके सामने आ जाएगी, आपने उसको भी व्यू करना है। ये दोनों वीडियो क्लिप्स, इनको आपने तवज्जो से देखना और सुनना है, और जो साथ साथ हमने ड्राइंग की है नेटवर्क की, उस नेटवर्क को भी आपने ड्रॉ करना है, जितनी भी एग्जांपल्स में आएंगी। और इस वीक का जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे इस पर्टिकुलर इन दो वीडियो क्लिप्स के मुतालिक। तो आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंफ्यूजन्स होंगी, हम उनमें एड्रेस करेंगे। So wish you all the very best. We'll take a short break and then we'll be moving to the next video clip for today. Take care, everybody.